Today we will start the case studies related to the planning. जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्लानिंग. ठीक है, और वो आप क्वेश्चंस में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 1. A shoe manufacturing company wants to become a market leader. For this, a detailed planning is required. The first step taken by the firm is to set the targets for the 3 months durations for selling the maximum number of shoes in the market, which they set as 2,50,000. Sorry. Yes, the first step taken by the firm is to set the targets for the 3 months duration for selling the maximum number of shoes in the market, which they set as 2,50,000. The team doesn't want to make any mistakes, so they decided to do the proper planning. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे. They decide to chalk out alternative plans. अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप पता चलेंगे. They decide to chalk out the alternative plan so that they can arrive at the best possible plan. However, the team is surrounded with doubts. यानी कि टीम बहुत ज़्यादा डाउट्स में सराउंडेड है. To remove the doubts, it goes for judging the plans to get the most profitable one. The plan is taken to the whole organization and the plan is taken to the whole organization and the concerned persons. Ultimately, it is put on action without much caring for the results. The company starts working on the other projects simultaneously. देखिए क्या क्या है. The plan is taken to the whole organization and the concerned person. Ultimately, it is put into action. Without much caring for the results, the company starts working on the other projects simultaneously. Identify the steps in the planning process which have been applied by the organization in the above case. अब देखिए इसमें कौन सी फॉर दिस डिटेल प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप तो है टारगेट सेट करना. तो दैट इज द सेटिंग ऑब्जेक्टिव. तो ये वाला जो है ये लाइन है ये क्या सेट करती है. दिस इज द सेटिंग ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज द टीम डजंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक सो दे डिसाइड टू डू प्रॉपर प्लानिंग. उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करने की सोची. दे डिसाइड टू चॉक आउट ऑल्टरनेटिव्स. उन्होंने क्या किया ऑल्टरनेटिव यानी कि आइडेंटिफाइंग द वेरियस alternatives. क्या क्या उन्होंने आइडेंटिफाइड द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. However, the team is surrounded with doubts थी उनके. To remove the doubts, it's cause for judging the plan to get the most profitable one. ये कौन सा है. This is the ये कौन सी लाइन है. Evaluating the best alternative. कौन सी लाइन है ये. Evaluating the best alternative. The plan is taken to the whole organization and the concerned person. Ultimately, it is put into action without much caring for the results. The company जो company थी उन्होंने क्या किया. उन्होंने स्टार्ट कर दिया वर्किंग मतलब पुट इनटू एक्शन. ये पुट इनटू एक्शन क्या है. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. ये कौन सा है. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. समझ में आ रही है बात. क्लियर हो. ये इसका आंसर है. देखिए इन द अबव केसेस. देखिए पहला क्या था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द फर्म इज टू सेट टारगेट्स फॉर द 3 months ड्यूरेशन फॉर सेलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज इन द मार्केट विच दे सेट एज 2,50,000. Second is the identifying the alternative courses of action. That means they decide to chalk out the alternative plans. बताया था मैंने आपको. Third is the evaluating doubts को remove करने के लिए. The best plan is finalized to selection of the plan and ultimately it is put into action. That is the implementation of the plan. Clear हो गई अच्छी तरह से. आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं. Now the next question is Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited is engaged in the manufacturing and distributions of medicines. The company has set up an objective of increasing its sales turnover by 20%. To achieve this objective, the company has decided to diversify into baby healthcare products. Since the company has already set its objective and developed the premises based on the same, it wants your help for the remaining steps to be taken in this process. Explain briefly these steps. देखिए अब वो क्या कर रहा है. उसने 2 स्टेप्स वो कर चुका है. कौन से स्टेप्स वो कर चुका है. सेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप द प्रेमिसेस. तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स वो कर चुका है. तो बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए. डेवलपिंग द प्रेमिसेस के बाद उसे क्या करना चाहिए. आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. फोर्थ इज इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स. फिफ्थ इज सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव या सेलेक्टिंग द प्लान. सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड सेवंथ इज द फॉलो अप एक्शंस. तो बाकी के जो स्टेप्स बचे हैं उन्हें सिर्फ आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है. गॉट इट. समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से. तो आपको सिर्फ क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी में ही जो इन द अबव केस आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विच आर नॉट इंडिकेटेड. दैट मीन्स डेवलपिंग प्रीमिसेस एंड द फॉलो अप. सॉरी यस डेवलपिंग प्रीमिसेस एंड द फॉलो अप. जो ऊपर में इंडिकेटेड नहीं है दैट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस एंड द
फॉलो अप, यानी कि डेवलपिंग प्रोमिसेस नहीं है और फॉलो अप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, serious business is a balloon manufacturing firm. With the arrival of foreign firms, it is feeling the pressure of improving its business strategy. Serious business एक balloon manufacturing firm है. With the arrival of the foreign firms, यानी कि foreign firms आ रही हैं, तो it is feeling the pressure of improving its business strategy. Because of the firm's advanced planning, it could not suddenly bring changes in its plans as the whole organization has started implementing the decided plan. बट दिस ईयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू इंश्योर द सक्सेस, यानी कि चाहती है इस ईयर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करना चाहती है. बट दिस ईयर however the firm knows that the external environment is changeable and continues to vary in a fast manner. The organization wants to prepare in advance for a better future. It has decided to allocate a portion of its budget specifically for proper planning, as it knows there are going to be expenses like export fees, service charges, etc. Which limitations of planning have been identified in the above case. कौन सी identified है? Involves the huge cost. That means देखिए इसमें एक और है, कौन कौन सी? देखो एक लिखा है because of the firms, ये वाली. Because of the firm's advanced planning, it could not suddenly bring changes in its plans as the whole organization had started implementing the decided plan. तो ये कौन सी है? Planning leads to rigidity. तो because of the firm's advanced planning, क्योंकि वो कर चुकी है advanced planning, it could not suddenly bring changes in its plans as the whole organization has started implementing the decided plan. तो ये कौन सी है? Planning leads to rigidity. The firm knows that the external and continues to vary. The organization wants to prepare. It has decided to allocation a portion of the जैसे कि यहाँ पे ये वाला है this line. However, the firms knows, ये वाली जो line है, however the firms know that external environment is changeable and continues to vary in a fast manner. तो planning जो होती है वो किस में वर्क नहीं करती? ये लाइन है, planning may not work in the dynamic environment. और लास्ट लाइन जो ये वाली है, export fees and service charges, ये कौन सी है? Planning involves the huge cost. तो these are the answers. तो planning में क्या होते हैं? Huge cost होते हैं. क्लियर हो रही है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? Now next question is, Flows Technology deals in bulb manufacturing business. It plans for a successful year of production and sales this year. Flows Technology जो डील करती है वो बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डील करती है. It plans for a successful year of production and sale this year. It has in advance given targets to all its departments and employees. The departments and employees are happy about this. Departments और employees क्या हैं? वो happy हैं इस चीज़ से. They know that now they won't have to do unconcerned activities, thus leading to more focused approach resulting in the saving of resources. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए. देखिए अगर हम क्वेश्चन के एंड में जाएं तो आपको पता चल जाएगा. यहाँ पर लिखा है इन द अबव केस आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड हियर. अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है तो आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए. अगर आप ऐसे करेंगे कि आप पहले नीचे का पोर्शन पढ़ लें और उसके बाद ऊपर का पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है. तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. तो फ्लोज टेक्नोलॉजी डील्स इन द बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. इट प्लान्स फॉर अ सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स दिस ईयर. इट हैज़ इन एडवांस गिवन टारगेट्स टू ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि एडवांस में उसने टारगेट्स दे दिया. द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी अबाउट दिस. ठीक है. They know that now they won't have to do unconcerned activities and thus leading to more focused approach resulting in the saving of resources. ठीक है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लाइन याद रखना. ये क्या है? ये सेविंग ऑफ रिसोर्सेज के. The company is thinking of starting 2 new plants in the southern portion of India. For this, some concrete plans has to be made. The main core team of the company has decided to weigh all the options and then choose the best one. ठीक है. डिसीजन मेकिंग है. ठीक है. द रोड माइट बी लॉन्ग बट द कंपनी इज गियर्ड टू फेस ऑल द चैलेंजेस. तो कौन कौन सी देखिए, एक तो है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. क्या प्रोवाइड कर रही है ये? डायरेक्शन. दैट मीन्स इट हैज़ इन एडवांस गिवन टारगेट्स टू ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स. तो उसने टारगेट्स दिया है. टारगेट्स दिया है तो क्या है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. ये प्रोवाइड कर रही है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. कैसे? कि दे नो दैट they won't have to do unconcerned activities. तो इससे thus lead to more focused approach resulting in the saving of resources. And मैंने आपको बताया था ये planning facilitates the decision making. Planning क्या करती है? It facilitates the decision making. तो these are the importance जो highlighted है इसमें. ठीक है. Next question is,
An established firm has 50 years of experience in shipping industry. The company time and again proved itself as one of the dominant figures in the market. The plan for the whole year is given a lot of importance. According to the owner of the company, their plans. देखिए मैंने दोबारा से ऐसे काम किया, बट हम फिर से नीचे का पढ़ते हैं. क्या दिया हुआ है? In the above cases, identify the various features of planning highlighted here. Which type of plan is indicated? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कट चुका है, सिलेबस का पार्ट नहीं है. आपके लिए ऊपर का है. इन द अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड. फीचर्स ऑफ प्लानिंग. अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं. एन एस्टेब्लिश्ड फर्म हैज 50 years of experience in shipping industry. The company time and again proved itself as one of the dominant figures in the market. The plan for the whole year is given a lot of importance. According to the owner of the company, their plans are the basic structure upon which other important functions of management rest. That means planning is the primary function of management. समझ में आया? ये वाली जो लाइन है क्या है? प्लानिंग इज द प्राइमरी, क्योंकि उस पर दूसरे फंक्शन रेस्ट करेंगे ना, तो ये क्या है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट, it is important that the plans are communicated to the employees. The top management ensures that the plans are communicated and implemented at all levels and in all departments. At all levels and in all departments क्या है ये? Planning is pervasive. क्या है ये? Planning is pervasive. To learn from the past mistake, it is a habit of the successful company. They prepare plans for short term as well as long term, where it can be seen that throughout the year the plans are prepared one after another. One after another का मतलब क्या है? Planning is continuous. Planning क्या है? Continuous है. तो ये लाइन्स होती हैं. अब आपको पता चल रहा है कि आपने फीचर्स देख लिए, तो आप एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और हाईलाइट करते जाएंगे. अब आती है शिपिंग इंडस्ट्री नीड्स सच डेडिकेटेड कंपनीज. The goals are specific and the activities to achieve these specific goals are undertaken. The planning is goal oriented. The company has a planned growth of 20% in revenue this year. Let's see how much it's possible for it to achieve it by the end of the year. हम ये देखेंगे कि प्लानिंग अगले साल कितना अचीव करेगी. समझ में आया? तो you have to identify the various features of planning highlighted here. Now let's see the answer. देखिए आंसर है इसका. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बताया था मैंने आपको. देयर प्लान्स आर द बेसिक जो दूसरे पे रेस्ट करते हैं, तो यही आंसर हमने बोला. प्लानिंग इज परवेसिव क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने एश्योर किया कि प्लान्स आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स. क्लियर हो गई? प्लानिंग इज कंटिन्यूअस क्योंकि वन आफ्टर अनदर. प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. तो ये सब क्या हैं? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. क्या है ये? फीचर्स ऑफ प्लानिंग. देखिए अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, हम डिस्कस करते जा रहे थे उस चीज़ को, तो क्वेश्चंस के साथ साथ वो चीज़ समझ में आ रही थी. समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप क्या करा करो, आप नीचे का पार्ट पढ़ा करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. उसके बाद जब ऊपर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड मेकअप कर लो. जब फीचर पूछ रहा है तो सारे फीचर आपको दिमाग में होने चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं. उसके बाद आप डिस्कस करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो केस स्टडीज़ को. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन जो नीचे दे रखा है, उसके बाद ऊपर जाइए. गॉट इट? समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुकुमार. पहले हम नीचे के पढ़ लेते हैं, बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है. देखिए, विच लिमिटेशंस ऑफ विच फीचर ऑफ प्लानिंग हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस एंड विच लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हैव बीन हाईलाइटेड. तो एक फीचर है, फीचर्स हैं और लिमिटेशंस भी हैं. तो कौन कौन से फीचर्स दिखाई देंगे आपको और कौन कौन से लिमिटेशंस दिखाई देंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. सुकुमार इज एन एनर्जेटिक मिडिल लेवल मैनेजर. सुकुमार क्या है? एक एनर्जेटिक मिडिल लेवल मैनेजर है. ही ट्राइज टू मेक द बेस्ट प्लान. For this he involves foresight and intelligent imagination. अब इससे क्या पता चलता है? Foresight and intelligent imagination. ये क्या है? This is mental exercise. Planning is a mental exercise. Within 3 years, many of his projects have been very successful. His high success rate is due to his good plans. He always make alternative plans and select the best out of them after considering the relevant aspects. However, he knows it is not necessary that all plans will be सक्सेसफुल. तो लिमिटेशंस क्या है? प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस. प्लानिंग डज नॉट, ये कौन सी लाइन हाईलाइटेड कर रहा है? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. समझ में आया? ही नोज दैट समटाइम हिज कंसर्न फॉर मेकिंग वेरी गुड प्लान्स ईट्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. ये क्या है आपका? दिस इज प्लानिंग इंक्लूड्स ह्यूज कॉस्ट. कॉस्ट इंक्लूड करता है टाइम और एनर्जी. His friend Jyoti suggests him to take suggestions from others when he make his plans and also consider plans made by others.
Even after so much painstaking, Sukumar knows that his plan can yet fail in the uncertain business environment. Planning does not work in the dynamic environment. ये limitation है कि planning does not work in the dynamic environment. He has recently decided to plan carefully in the future. समझ में आया? Now let us see the answer. Features है वो बताया था मैंने आपको. Planning is a mental exercise क्योंकि imagination है. Alternative plan and selects the peg. Planning involves the decision making. तो ये दो features इसके अंदर हैं. और अब limitations. अब limitation देखिए. Planning is a time consuming process. टाइम ज़्यादा लगता है. और planning does not guarantee the सक्सेस क्योंकि उसको पता है कि अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट में वो फेल हो सकते हैं. इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट. ये भी चलेगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इसमें आपको प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस. प्लानिंग ज़रूरी नहीं है. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस कि सक्सेस हो. क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the annual general meeting, a company set its targets for the year. The manufacturing department has to manufacture. हम पहले क्या पढ़ते हैं, मैं बार इसको. In the above case, identify the importance of the planning and the concerned lines. Importance आपको बतानी है. चलिए शुरू करते हैं अब. In an annual journal meeting, a company set its targets for the year. The manufacturing department had decided to manufacture 2.5 million units of the product and has decided to monitor the performance so as to control it accordingly. मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है उसने डिसाइड किया है कि वो 2.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा और उसने डिसाइड किया है टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस सो एज टू कंट्रोल इट अकॉर्डिंगली. द सर्वे डन बाय द कंपनी हैज शोन अ नंबर ऑफ सिटीज इन द नॉर्थ विच वर शोइंग इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. The company in its research during the last 3 months generated various options and decided to follow the best one. The HR team is also concerned about its output. The HR had revealed that there can be a shortage of MBA pass-outs which can reduce the quality of manpower in the near future. So he had decided to arrange the HR workshops in different colleges to get the best candidates. The board meetings ends on a positive note. In the above case, identify the importance of planning and the concerned lines. अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर. देखिए इसका आंसर है फर्स्ट इज द प्लानिंग एस्टेब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या कर रही है? एस्टेब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि 2.5 मिलियन यूनिट्स बनाए जाएंगे तो इससे हम कंट्रोल कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे अपने परफॉर्मेंस को. कंपनी ने रिसर्च किया 3 मंथ्स का, तो डिसीजन मेकिंग है. HR ने देखा कि भाई आगे MBA स्टूडेंट्स की कमी आ जाएगी तो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से बात. तो ये आपके क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस होते हैं. HR हैड रिवील्ड दैट देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ MBA पास आउट्स विच कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मैन पावर इन द नियर फ्यूचर. सो इट हैज़ टू डिसाइड टू अरेंज HR वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कॉलेजेस टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट. तो ये क्या कर रहा है? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? Now let us go to the next question. Dhulai is a washing machine manufacturing company. The company decides to enter into a music system manufacturing industry. The company has a committed top management. It knows that there are various challenges in the market where its decisions regarding the new industry might fail. समझ में आ रही है बात कि धुलाई एक वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. पहले हम नीचे का देख लेते हैं. ये पूछ रहा है कि which function of management has been discussed in the above case, which limitation of planning have been highlighted in the above case, which type of plan ये आपको छोड़ देना है, which feature of planning is highlighted above. चलिए limitation, functions और ये बताना है. तो धुलाई एक वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. The company decided to enter into the music system manufacturing industry. The company has a committed top management. It knows that there are various challenges in the market where its decisions regarding the new industry might fail. Still, the top management doesn't want to waste a lot of resources on its plans. That means, देखिए अब शुरुआत करते हैं. The company decided to enter music system manufacturing and the company has a committed top management. It knows that there are various challenges in the markets where its decisions regarding the new industry might fail. बहुत सारे challenges होते हैं मार्केट में जहाँ पर आपके decision fail हो सकते हैं. Still, the top management doesn't want to waste a lot of resources on its plans. It knows that sometimes plans take more time. Planning is a time consuming process. पता चल गया यहाँ से planning क्या है? Time consuming. तो एक limitation निकल गई. It knows that sometimes plans takes more time in making than getting implemented.
However, the company wants to proceed with a positive approach. It has decided to study all the aspects of its competitors, to set all its objectives and allocate the required resources. That means उन्होंने decide किया है कि study all the aspects of its competitors. ये decision making है. The company did well in its previous business. At that time, they looked planning very seriously, as they knew everything the company would do had to be based on the concrete plans. ये है आपका planning is the primary function of management. The company will start his operations from the next month. तो company क्या करेगी? Next month से अपने operation start करेगी. तो which function of management has been discussed here? Planning. ठीक है, कौन सा function management का discuss है यहाँ पर? Planning. Which function is highlighted here? Planning. तो कंपनी ने डिसाइड किया म्यूजिक सिस्टम में, तो वो प्लानिंग हुई. अब देखिए लिमिटेशन क्या है. इट नोज दैट देयर आर वेरियस चैलेंजेस इन मार्केट वेयर इट्स डिसीजंस रिगार्डिंग द न्यू इंडस्ट्री वाई फेल. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. वांट्स टू वेट रिसोर्सेज नहीं वेस्ट करना चाहती, तो इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये तो टाइप ऑफ प्लान तो आप छोड़ दीजिए. फीचर ऑफ प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि फीचर एक ही बना दी थी, लिमिटेशंस बहुत सारी थी. फीचर आपकी एक ही है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि बेस्ड ऑन द कॉन्क्रीट प्लान्स. गॉट इट? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से इनके आंसर्स दिए जाते हैं. लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 12. धीरज इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैनेजर. After working for the implementation of his well chalked out plan, he from the start of July decided to see in what ways and up to what accuracy has his plan will be implemented. Which step of planning process? एक step है. हार्ड वर्किंग मैनेजर है. इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आफ्टर वर्किंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज वेल चॉक्ड प्लान, ही फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जुलाई, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसने स्टार्ट किया कि व्हाट वेज एंड अप टू व्हाट एक्यूरेसी हैज़ हिज प्लान बीन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि उसके प्लान कितनी एक्यूरेसी से इम्प्लीमेंट हुआ है. तो कौन सा स्टेप है? कौन सा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन के बाद? येस, फॉलो अप. कौन सा स्टेप है ये? फॉलो अप. बस फॉलो थ्रू. दिस इज द स्टेप जो हाईलाइटेड है. वो कौन सा स्टेप है यहाँ? फॉलो अप. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजेश इज एट द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द कोर्स ऑफ हिज प्लानिंग. देखिए, अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है, थ्रू विच स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज राजेश गोइंग. एक ही स्टेप है, एक ही स्टेज है कि किस स्टेज पे वो जा रहा है. ऑल्सो गिव द नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. तो राजेश इज एट द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द कोर्स ऑफ हिज प्लानिंग. He has arrived at this point after identifying the various alternative courses of action. That means ये वहाँ यहाँ कैसे पहुँचा है? After identifying the various alternative courses of action. After identification, he was thoroughly involved in the evaluation of each of these alternatives. यानी कि identify कर लिया उसने alternative, उसके बाद उसने evaluate भी कर लिया. He later got involved into making several permutations and combinations of these alternatives, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसने करी to arrive at this point. तो अब उसने identify कर लिया, evaluate कर लिया, अब वो क्या करेगा? Yes, क्या करेगा वो? Selection of an alternative, यानी कि अब वो कौन सी स्टेज पे है? Selecting an alternative. तो this is the answer कि राजेश is at the real point of decision making in the course of his planning. He has arrived at this point after identifying the alternative courses of action. After identification, he was thoroughly involved in the evaluation of each of these alternatives. He later got involved into making the several permutations and combinations of these alternatives to arrive at this point. तो स्टेज कौन से जा रहा है राजेश? Selecting an alternative. The real point of decision making is selecting an alternative. और जो next 2 steps होंगे वो क्या होंगे? Implementing the plan and the follow through. Follow up action भी बोल सकते हो या follow through भी बोल सकते हो. बात देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नमन इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लानर. ही नोज दैट मार्केट प्रेटी वेल. ही नोज द मार्केट प्रेटी वेल. फॉर लास्ट 15 years he has been leading. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं. What is the other term used for assumptions in the planning premises? And यहाँ पे पूछा गया है which step of the planning process is above related to. What is the base material for developing the premises? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Naman is a very intelligent planner. He knows the market pretty well. For last 15 years, he has been leading several successful projects for his company. Company gives him responsibility to start a new project in South America. With his experience, he makes assumptions about all the possible future scenarios. यानी कि अपने experience से उसने बहुत सारे assumptions करे हैं.
विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज द अबव पैराग्राफ रिलेटेड हियर? तो एक्सपीरियंस है, तो ये क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। क्या है ये? डेवलपिंग प्रेमिसेस। ठीक है, और प्रेमिसेस का जो ये सेकंड स्टेप है प्रेमिसेस का, और प्रेमिसेस का जो अदर टर्म यूज होता है assumption में उसे कहा जाता है प्रेमिसेस। ये पूछा गया है ना, व्हाट इज द अदर टर्म यूज फॉर assumptions इन द प्लानिंग प्रेमिसेस? तो उसको कहते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, तो उसको प्रेमिसेस कहा जाता है। और कौन सा बेस मटेरियल होता है? तो ये बेस मटेरियल होता है फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन। यानी कि हम फोरकास्ट से पता करते हैं, एग्जिस्टिंग प्लान्स जो हमारे चल रहे होते हैं, या कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन से हम प्रेमिसेस को बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यस। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्ड अबाउट हैज अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस, एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशंस। इधर क्या है हमारे यहाँ पर? क्या है? 2 लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस चीज़ से पूछ रहा है? नंबर ऑफ लिमिटेशन, और आपको 2 लिमिटेशंस आपको बतानी है, तो वो क्या होंगी? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस। पहले बात तो पता चल गया कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग फंक्शन है। इट रिक्वायर्स दैट बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क. The function is closely connected with creativity and innovation. It seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go, and it is performed at all levels of management. In spite of this, the function of management referred above has a number of limitations. अब ये हमें सिर्फ किस लिए दिया गया है? सिर्फ फंक्शन पहचानने के लिए। इसमें कुछ और नहीं है, फीचर्स हैं बहुत सारे, पर फीचर्स पूछे नहीं गए हैं, सिर्फ हमें फंक्शन पहचानना है। तो फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। अभी तो आप प्लानिंग चैप्टर कर रहे हो, आपको पता है कि ये प्लानिंग है, बट जब आप सारे एक साथ कर लेते हो तब आपको मुश्किल हो जाता है जानना कि क्या है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसको वीडियो को संभाल के रखिएगा, और मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो कि इनको कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इन क्वेश्चंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें इसके अलावा बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो आप लिमिटेशंस कोई भी 2 लिमिटेशन, रिजिडिटी है और रिड्यूसेस क्रिएटिविटी है, एनी ऑफ द 1 लिमिटेशन, कोई भी एक्सप्लेन एनी 2 सच लिमिटेशन, क्योंकि इसमें हाईलाइटेड नहीं है कोई भी लिमिटेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हाईलाइटेड है? प्लानिंग फंक्शन हाईलाइटेड है, इसके अलावा कोई चीज़ हाईलाइटेड नहीं है। तो आपको लिमिटेशन बतानी है तो आप इसमें लिमिटेशंस बता सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो दीज आर द केस स्टडीज़ जो अभी डिस्कस की हैं मैंने, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और इनको कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब ये आपका प्लानिंग चैप्टर यहीं ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। तो दिस इज़ ओवर। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, और नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।